Jesus says in John 14:19, because I live, my children, you will also live. Welcome to the Jesus Calls Gujarat Prayer Festival. Jesus Calls Prayer Festival ગુજરાતમાં તમારું સ્વાગત છે. Jesus calls and God bless you. ઈસુ તમને બોલાવે છે અને પ્રભુ તમને આશીર્વાદ આપે. My dear brothers and sisters, I am so thrilled to see you this day, and as you are expecting the miracles to happen in your life, today the Lord will come upon you and fulfill all your heart's desires. मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मुझे बहुत खुशी है कि इस टेलीविज़न कार्यक्रम में आप हैं, और जब आप आशीषों के लिए इच्छुक हैं, प्रभु आकर आपके हृदय की इच्छाओं को पूरा करेगा. In Isaiah 30:15 we see this. यशायाह 30:15 में इस प्रकार हम देखते हैं. It says, in quietness and confidence shall be your strength. वहाँ लिखा है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार. As we put our whole trust in God, जब हमारा संपूर्ण भरोसा हम परमेश्वर पर रखते हैं, the Lord somehow gives us strength to get back everything that we have lost. प्रभु हमें बल देता है कि जो कुछ हम खो गए हमें वापस मिलता है. And the blessings we desire with all our heart, और जो आशीषों को हम हृदय से इच्छा रखते हैं, it comes from the Lord. ये प्रभु की ओर से हमको मिलता है. As we put our trust in God, this happens. जब हम अपना भरोसा परमेश्वर पर रखते हैं, ये होने लगता है. So today let us cast all our burdens unto the feet of this God. और इसलिए इस परमेश्वर के चरणों में हम अपने तमाम समस्याओं को, बोझों को रखें. Our loving Father Jesus Christ. हमारे प्रेमी पिता प्रभु यीशु ख्रिस्त. So today let our Heavenly Father fulfill all your heart's desires and make you very glad. और इसलिए ये स्वर्गीय पिता आपके हृदय की इच्छाओं को पूरा करके आपको खुशी प्रदान करें. Even today we are going to meditate
upon the great blessings of the Lord. और आज हम परमेश्वर के महान आशीष के ऊपर में थोड़े समय ध्यान को करेंगे। The Bible says those who worship the Lord with truth and in spirit. बाइबल में लिखा है जो आराधना करते हैं सच्चे आराधक आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करते हैं। Even today, when the word of God will be given to us, let us take everything for our blessings. और जब आज परमेश्वर का वचन हमारे साथ में बांटा जाए, ये जरूरी है कि हम कहें कि परमेश्वर ये वचन मेरी शिक्षा के लिए होने पाए। Our Lord has great blessings for us. परमेश्वर के पास हम सबों के जीवन के लिए बहुत आशीष रखा है। So let us boldly say, इसलिए हम बड़े हिम्मत के साथ इस बात को कहें, the Lord is my light and my salvation. परमेश्वर मेरा रोशनी और मेरा उद्धार है। Of whom shall I fear? मैं किसी से ना डरूंगा। The Lord is the strength of my life. परमेश्वर मेरे जीवन का मेरा बल है। Of whom shall I be मैं afraid? किससे डरूं? Be bold, dear friends, इसलिए प्रिय मित्रों, आप याव बांधिए and show Jesus to this और world. सारी दुनिया को आप यीशु को पेश कीजिए। Never be ashamed at any time. किसी भी समय किसी बात के लिए ना शर्माएं। People may say you are telling fairy tale stories, लोग आपसे कहेंगे आप दंत कथाएं या परी कथाएं सुना रहे हैं, but you keep on going. लेकिन आप आगे बढ़ते जाएं। You show the miracles of God. आप परमेश्वर के चमत्कार को दिखाइए। Let us not ignore the great salvation the Lord has given जो us. बड़े उद्धार प्रभु ने हमको दिया है उसको हम अनजान ना रखें। And secondly, the Lord has given us great mercies. और चीज जो प्रभु ने हम पर दिखाई है वो उसकी बड़ी दया है। In Bible, in Psalm 117:2, it says, और भजन 117 उसके 2 में बाइबल यूं कहती है, for his merciful kindness is great toward us. और वो कहता है उसकी दया और कृपा हमारे लिए मोहताज से है। Through his mercies, we receive one blessing after the other. हम कितनी आशीषों को एक के बाद एक प्राप्त करते जाते हैं। In John 1:16, the Bible says, यूहन्ना 1 उसका 16 में बाइबल यूं कहती है, from the fullness of his grace, we receive one blessing after the other. उसकी इतनी आशीषों में हम एक के बाद एक आशीष को प्राप्त करते हैं। The goodness and mercy follows us every day. उसकी दया और कृपा प्रतिदिन हमारे जीवन में आते रहती है। Even if we want that or not, the Lord always sends us before that. चाहे हम चाहें या ना चाहें, प्रभु अपनी आशीषों को हमारे जीवन में भेजता रहता है। His mercies are new every morning. उसकी जो दया है रोज हमारे लिए नई होती जाती है। We may be unfaithful to हो God, सकता है कि हम परमेश्वर के साथ ईमानदार ना हो, but our God is faithful to us. लेकिन परमेश्वर हमारे साथ हर समय ईमानदार रहता है। Always showing mercy, mercy, mercy to हर us. समय अपनी दया को दिखाता है। Many a time we will be focusing our hearts only upon this worldly things और in the कई world. बार हम दुनिया की चीजों की ओर अपनी दृष्टि को गड़ाए रखते हैं। Our eyes go to the worldly things of the world, हमारे आंखें दुनिया की चीजों की ओर चले जाती हैं forgetting about God. और हम परमेश्वर के बारे में भूल जाते हैं। But then His mercies are very great. लेकिन तब उसकी दया, उसकी कृपा बहुत होती है। In 1 Kings 3:6, Solomon says like this, पहला राजा 3 उसका 6 में सुलेमान राजा यूं कहता है, Lord, you have shown great mercy to your servant David, परमेश्वर तूने अपने दास दाऊद के पर में बड़ी कृपा की है, because he walked before you in truth, in righteousness, and in uprightness of heart. क्योंकि वो मन की सिधाई से और धार्मिकता के साथ तेरे सन्मुख चला है। You have continued this great kindness for him, परमेश्वर आपने अपनी बड़ी कृपा उसके जीवन के लिए रखा है and you have given him
a son to sit in his throne. और आपने उसके बेटे को इस सिंहासन पे लाके विराजा है। He was so grateful to वो God परमेश्वर के प्रति बहुत धन्यवादी था for showing great kindness, और बड़ी दया को वो दिखाता था। great mercy towards him. बड़ी दया और कृपा प्रभु उसकी ओर दिखाता रहा। He used to say, Lord, I am a little fellow. और वो हर समय कहता था, प्रभु मैं हूँ क्या, I do not know anything. मैं कुछ भी नहीं जानता प्रभु। Give me wisdom, Lord. प्रभु जी मुझे सब बातों को सिखा दो। Give me wisdom. परमेश्वर मुझे बुद्धि तो दे। That should be our prayer every ये day, dear हमारी friends. प्रार्थना होनी चाहिए प्रिय मित्रों। Every day morning I used to ask the Lord like मैं that. हर एक सुबह प्रभु से यूं कहा करता था, I don't have any wisdom, परमेश्वर मेरे पास कोई बुद्धि नहीं, but give me your wisdom, लेकिन प्रभु Lord. आप अपनी बुद्धि मुझे दीजिए। Show me your mercy, Lord. परमेश्वर अपनी दया और कृपा मुझ पे प्रकट कीजिए। Dear friends, प्रिय मित्रों, through my mother, मेरी माँ के जरिए our generation have received His great mercies. हमारे वंश के लोगों ने बहुत कृपा को, बड़ी कृपा को पाई है। One generation after the other, the Lord has shown great mercies to us. हमारे ऊपर में परमेश्वर ने एक वंश के बाद दूसरे आने वाली पीढ़ी के पर प्रभु ने अपनी बड़ी दया को प्रकट किया है। After my mother, I have been blessed. और मेरी माता के बाद मैं आशीष को पाई हूँ। And today, our children have received this great mercy. और आज इसके बाद हमारे बच्चों ने आशीष को पाई है। So, dear mothers, सो प्रिय माताओं, let us be faithful to God इसलिए हम परमेश्वर के साथ ईमानदार रहें and receive the mercies of God from God every morning. और रोज सुबह प्रभु की दया और कृपा को आप प्राप्त कीजिए। Dear fathers, प्रिय पिताओं, every day early in the morning, get up and receive this great mercies from रोज सुबह God. प्रातः काल उठ के परमेश्वर के इस महान दया को आप अपने जीवन में ग्रहण कीजिए। I am glad that we are worshipping the Lord today early in the morning. मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि इस सुबह प्रातः काल में हम प्रभु की आराधना कर रहे हैं। My husband's grandfather used to do that. और उन मेरे पति के जो दादा थे वो ऐसा किया करते थे। He'll get up early in the morning at 4 o'clock, वो सुबह के समय 4 बजे उठ जाते थे and as he would read the Bible, और जब वो बाइबल को पढ़ते थे he will mention everyone in the family as the promise of God would come to him. और जब प्रभु के बातें उसके पास आती वो परिवार के हर एक सदस्यों को स्मरण करते थे। He will say, Lord, bless my son Dinakaran from this day on. और वो कहते थे, प्रभु मेरे बेटे दिनकरन को आज के बाद से आप आशीष दीजिए। Bless my grandson Paul from this day on. मेरे पोते पौल दिनकरन को आप आशीर्वाद दीजिए। And through his prayers, we are now blessed. और आप उनकी दुआ की वजह से आज हम आशीषित हुए हैं। The Lord has blessed the 4th generation. परमेश्वर ने 4 पीढ़ियों को ऐसी आशीष दी है। So let us grab this great mercy from the Lord every इसलिए day हम morning परमेश्वर से इस महान कृपा को पहले दिन से ही पकड़ लें and say, Lord, we love you, Lord. और ये बोले, प्रभु हम आपको प्यार करते हैं And we love you, Jesus. और हम आपको प्यार करते हैं यीशु। The more we praise the Lord, जितना हम प्रभु की स्तुति करेंगे, the more we glorify the जितना Lord, हम प्रभु को महिमा देंगे, the more blessings we receive. उतनी आशीषों को हम पाएंगे। Never sit and cry over the things that are happening in our life. जो हमारे जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं उसके लिए बैठ के सिर्फ रोइए मत। The wicked devil will always make us to sit in darkness. और जो बुरा शैतान है हमें हर समय अंधियारे में बैठाने का प्रयास करेगा, But God's heart is to make us glad. लेकिन हमारा परमेश्वर ये चाहता है कि हमारे दिल को प्रफुल्लित करे। Our God is able to give us all the things in this world and in the other world for us to और enjoy. परमेश्वर चाहता है कि वो तमाम आशीषें हमें इस दुनिया में दे जिसका हम आनंद ले, और आने वाले
स्वर्ग में भी हर एक आशीषों को वो हमें दे। Even today we are going to praise God और आज भी हम प्रभु की स्तुति करेंगे and lift up the name of the Lord और यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करेंगे for the great blessings of the Lord. प्रभु के महान आशीषों के लिए। Shall we all close our eyes and praise God for some time? आइए हम अपने आँख को बंद करके प्रभु को हम उसकी स्तुति करें। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Father, धन्यवाद पिताजी, for your great and wonders, Lord. क्योंकि प्रभु आपके अद्भुत कामों के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। You're great in doing wonders, तू Lord. अद्भुत काम करता है प्यारे प्रभु। Father, you're great in showing great kindness. परमेश्वर तू महान है कि अपनी महान दया को दिखाता है। Father, you're great in giving us a great salvation to us, प्रभु Lord. आप महान है, आपने अपने बड़े उद्धार के काम को किए हैं। We praise you, Lord. हम आपकी स्तुति करते हैं We प्रभु, praise you, हम Lord. आपकी स्तुति करते हैं। Shall we all open our mouths and say thank you, क्या हम Jesus? अपने मुंह को खोल के बोल सकते हैं धन्यवाद यीशु, Thank you, Father. धन्यवाद पिता, Thank you, Father. धन्यवाद देते हैं पिता। Bless your dear children today, Lord. प्रभु जी आज अपने इन प्रिय बच्चों को आप आशीर्वाद दीजिए। Lord, as we meditated today, जब प्रभु हमने आपके वचन का ध्यान मगन किया है, let salvation come into their home. उनके घरों में उद्धार आने पाए। Today, आज आज whoever did not love the Lord, जो प्रभु को प्यार नहीं किए, Father, let salvation come into them, Lord. पिता हम प्रार्थना करते हैं कि उद्धार इनके जीवन में आने पाए। Save the family members, Lord. प्रभु जी उनके अंदर में नए व्यक्ति को बनाओ, Touch them, Lord. उनको स्पर्श कर, Wherever they are, जहाँ कहीं भी वो हैं bless them, उनको Lord, आशीष दे and bring them to your और fold. अपने प्रभु जी अपने गले लगाने के लिए उनको अपने पास बुला ले Enable your children to say, for me and myself, we will serve the और Lord. अपने बच्चों से ये बात कहलाइए प्रभु कि हम और हमारा संतान हम प्रभु की सेवा, For me and my household, we will serve the Lord. मैं और मेरा परिवार हम यहोवा की सेवा करेंगे। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, For your blessings are coming down. आपकी आशीष नीचे आ रही है। We receive it, प्रभु Lord. हम इसको ग्रहण करते हैं, We receive it, हम Master. इसको ग्रहण करते हैं स्वामी। Father, we beg you for the great mercies, Lord. प्रभु जी हम आपसे मांगते हैं बड़ी कृपा और दया के लिए, Generation after generation, एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी तक बनी रहे। let them receive your great mercies. आपके महान प्रेम को ग्रहण कर सके, अनुग्रह को, कृपा को ग्रहण करे प्रभु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, For your blessed hand is coming upon your people. आपके धन्य आशीषित हाथ आपके बच्चों के ऊपर में आ रहा है। From this day on, आज के बाद से let them receive new grace, वो Lord. एक नए अनुग्रह को पाए प्यारे प्रभु, New एक mercies. नई दया को पाए। Thank you, Jesus, धन्यवाद यीशु, for blessing them right now. इसी समय उनको आशीष देने के लिए Thank you for your wonders, Lord. धन्यवाद, आपके अद्भुत काम के लिए। Let them see miracles in their family वो अपने lives, पारिवारिक जीवन में चमत्कार को देखे, especially those who are serving the Lord. विशेष करके जो आपकी सेवा में हैं, Let them see wonders in their ministry, उनकी Lord. सेवकाई में वो अद्भुत कामों को देखें। Take them in your अपने hand हाथों में आप ले and लीजिए use them, Lord और प्रभु Jesus, यीशु मसीह उनको इस्तेमाल as कीजिए। a mighty weapon of और God. एक प्रभु के दास दासी होने के नाते प्रभु, Father, even now I pray for those who are having sickness in their bodies. प्रभु उनके लिए प्रार्थना करते हैं जिनके शरीर में किसी प्रकार की बीमारी है, Touch them and heal them. उनको स्पर्श करके उनको चंगाई दीजिए। Father, whatever may be the disease, पिता चाहे कोई भी बीमारी क्यों ना हो, let every disease be healed. हर एक बीमारी ठीक हो जाए। Thank you, Jesus, धन्यवाद यीशु, for your touch, Lord. आपके स्पर्श के लिए, Let your nail-pierced hand come upon them, Lord. ताकि प्रभु आपके छिदे हुए हाथ उनके ऊपर में आने पाए। Bring them out of all their troubles, उनको हर Lord. एक परेशानियों में से निकालिए
Let the blessings of the Lord come upon them, और Lord. प्रभु की आशीष उनके पर में आने पाए। Thank you, Lord. धन्यवाद देते पिता, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Bless the young and the old. हर एक बुजुर्ग और जवान सबको आशीष When दे। they go home, जब वो घर को जाएं, let them feel your presence वे आपकी- tremendously. वे आपकी उपस्थिति को बड़े प्रभावशाली ढंग से महसूस करने पाए। Let your presence go before them, Lord. आपकी उपस्थिति उनके साथ जाने पाए। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Father, let every blessing come in search of them. पिता, हम प्रार्थना करते हैं, हर एक आशीषें इनको ढूंढते हुए आए Let blessings and mercies follow them, Lord. और आशीष और कृपा इनके साथ में रहे। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन। My friend, there are several people who can't listen to the word of God in their homes or in the place where they stay. मेरे प्रिय मित्रों, अनेक हैं जो अपने घरों में या अपने निवास में परमेश्वर के वचन को नहीं सुन सकते। So we want to make available the Brother D.G.S. Dinakaran library, which we are going to set up soon for them to come and hear the word of God, read the word of God, and be taught the word of God. इसलिए ऐसे लोगों के लिए हम जल्दी ही भाई डीजीएस दिनाकरण पुस्तकालय की स्थापना करने जा रहे हैं, जहां लोग परमेश्वर के वचन को आकर पढ़ सकें, सुन सकें, जान सकें। Of course, my father's messages, notes, and my messages and notes, my mother's, my wife's, and our families will be available there. निश्चय ही वहाँ पर उसके साथ ही साथ मेरे और मेरी पत्नी, मेरी माता और हमारे बच्चों के संदेश और उनके साथ साथ हमारे लेख जो हैं वो सब भी वहाँ पर उपलब्ध होंगे। But more than everything, they can hear the word of God and meditate the word of God through the various media that we would have in video, in audio, in print, and so on. लेकिन सबसे बड़ी बात ये होगी कि वे वहाँ आकर के अलग अलग माध्यम से, जैसे ऑडियो, वीडियो और अन्य प्रकार से वहाँ परमेश्वर का वचन सुन सकेंगे। Would you help us to establish this Brother D.G.S. Dinakaran Memorial Library? तो क्या आप हमारी सहायता करेंगे इस भाई डॉक्टर डीजीएस दिनाकरण मेमोरियल लाइब्रेरी की स्थापना में? At least help us with one brick. मेहरबानी से आप कम से कम एक ईंट के लिए हमारी सहायता करें। God will build your home. परमेश्वर आपके घर को बनाएंगे। Here's how you can do it. आप इस तरह से हमारी सहायता कर सकते हैं। एक ईंट के लिए दान राशि है 300 रुपए। आप अपने दान राशियों को चेक, डीडी या मनी ऑर्डर के माध्यम से जीसस कॉल्स के नाम पर भेज सकते हैं। हमारा पता है जीसस कॉल्स प्रेयर टावर, नंबर 16, डॉक्टर डीजीएस दिनकरन रोड, चेन्नई 600028। या आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से अपने दान राशियों को हमारे सुरक्षित वेबसाइट www.jesuscalls.org पर भी भेज सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप अपने निकटतम यीशु बुलाता है प्रार्थना भवनों को भी संपर्क कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, हमारा ये कार्यक्रम प्रार्थना का समय अनेकों के जीवन में परमेश्वर से चमत्कार, आशीष व अनुग्रह को लेकर आता है। हम आपसे विनती करते हैं कि आप भी अपने अनुभव और गवाहियां लिख भेजें। इसके अलावा आप अपने प्रार्थना निवेदनों को भी लिख भेजें। डॉक्टर पॉल दिनकरन और उनका परिवार आपके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करेगा। हमारा पता है प्रार्थना भवन 16 डॉक्टर डीजीएस दिनाकरन रोड, चेन्नई 600028।